Every cell in our body contains a copy of our genome, over 20,000 genes, 3 billion DNA consists of 2 strands preceded together by A pairs with T and G pairs with C. Our genes shape who we are as individuals. Genes also have profound effects on health, and thanks to advances in DNA sequencing, researchers have identified disease. To understand how genes work, researchers need ways to control them. Changing genes in living cells is not easy, but recently a new method has been developed that promises to improve our ability to edit the DNA of many species, including humans. The CRISPR method is based on a natural system used by bacteria to protect themselves from infection by viruses. When the bacterium detects the presence of virus DNA, it produces 2 types of short RNA, one of which contains a sequence that matches that of the invading virus. These 2 RNAs form a complex with a protein called Cas9. Cas9 is a nuclease, a type of enzyme that can cut DNA. When the matching sequence, known as a guide RNA, finds its target within the viral genome, the Cas9 cuts the target DNA. Over the past few years, researchers studying the system realized it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence in a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test. क्या चल रहा है तुम बता दो एक बार। यही बात होती है, हर एक आदमी समझ नहीं पता चल क्या रहा है और ये क्या बता रहा आदमी। जैसे फिल्म चल रही है, बस ठीक है, अच्छा कुछ कर दिया, क्या घोड़ा था घूम रहा है यार, ये क्या आफत है जी। जो हम बात सुन रहे ये तो बता नहीं सकता, पक्की गारंटी बता दो जी। रानी लैंग्वेज तो अलग बोल रही, लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज है, वीडियो विदेश की है किसी की जी। अनमोल रतन, इतनी कहानी को तुमने फिल्म देख ली, क्या समझे जी। जी जी डीएनए क्या, क्या हो रहा है, क्या चल रहा। आईएएस प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसमें वो अंदर की प्रक्रिया दिखा रखी है। तुमने यहाँ ये सुना, तुम सुनो तो ये बात को ध्यान से इसकी, कि अब हमारे पास वो तकनीक आ चुकी है कि तुम्हारी बॉडी के इतने हिस्से में अगर खून नहीं बन रहा है और तुम्हारे डीएनए किसी पार्ट में दिक्कत आ गई है, अर्थात डीएनए की जो काम करने वाली इकाई है उसका नाम है जीन, ठीक, वो लीवर में अलग काम करती है, किडनी में अलग काम करती है, खून बनने की प्रक्रिया में अलग काम करती है, जो बोन मैरो है। अगर किसी भी डीएनए के पार्ट अर्थात जीन में कोई दिक्कत आ जाए तो अब तकनीक आ चुकी है कि प्रिसाइजली जहां भी दिक्कत है आप उसे वहीं से कट कर सकते हैं। कट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं किसका, ये चीज प्रिसाइजली बैक्टीरिया वहां भेजते हैं जो उसे वहीं जाकर कट करता है जहां आप चाहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया का नाम है क्रिस्पर केस 9, जिसे कहते हैं आणविक कैंची, जो डीएनए को काटती और जोड़ती है। ये तुम देख रहे हो कि डीएनए कट रहा है और कटने के बाद अब फिर दोबारा जुड़ रहा है और जुड़ने के बाद ये फिर से क्या हो गया, known as the guide RNA, finds its target within the viral genome. कटा था और जुड़ा। The Cas9 cuts the target DNA, disabling the virus. Over the past few years, researchers studying the system realized that it could be engineered to cut not just viral DNA, but any DNA sequence at a precisely chosen location by changing the guide RNA to match the target. And this can be done not just in a test tube, but also within the nucleus of a living cell. Once inside the nucleus, the resulting complex will lock into a short sequence known as the PAM.
and match it to its target RNA. It's two tiny molecular scissors. When this happens, the cell tries to repair the cut, but the repair process is error-prone, leading to mutations that can disable the gene, allowing researchers to understand its function. These mutations are random, but sometimes researchers need to be more precise. Original sequence with the new version. All this can be done in cultured cells, including stem cells that can give rise to many different cell types. It can also be done in a fertilized egg, allowing the creation of transgenic animals with targeted mutations. And unlike previous methods, CRISPR can be used to target many genes at once, a big advantage for studying complex human diseases that are caused not by a single mutation, but by many genes acting together. अब बताओ क्या समझा उसके बाद जी। चलो, मुझे तो पहले बेसिक से ये बात बतानी, तब यहाँ पहुँचना है। जो लोग इससे पहली क्लास लिए बैठे वो ये बात पकड़ लेंगे, लेकिन मुझे तो इससे पहले से बतानी है। ये वीडियो तुम्हें दिखाने का उद्देश्य ये अंदर की चीज़ तुम्हारे दिमाग में कल्पना जो चलती है वो पूरी हो जाए। ये बात है क्या कि अब हमारे पास ऐसी तकनीक आ गई है जिसका नाम है क्रिस्पर Cas9, जिसे कहते हैं डीएनए की कैंची, जो बिल्कुल प्रिसाइजली जहां से आप चाहते हो वहीं से उसे काट दे और बाद में जोड़ दे। ऐसा करके आप नए नए जीव बना सकते हो, जीवों के स्पेसिफाई गुणों को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और अपने असाध्य रोग का इलाज कर सकते हो। जैसे अभी एक बीमारी है अल्जाइमर, कोई इलाज धरती पे नहीं है, ठीक है। कौन? डायबिटीज टाइप 1, यानी वे सेल लगभग खत्म होने वाली है। आप वहीं से जो उनका फंक्शन कट गया है, खत्म हो गया है, वो काटो और नया जीन लगा दो और बाद में फिर जो काटो हो जाए। यानी ऐसे बहुत से उपयोग कर सकते हैं इसका। बाल झड़के साफ हो गए, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, तेल लगाओ या कुछ भी लगाओ। उस जीन की रिपेयरिंग फिर से कर दे कौन? जैसे बचपन में सारे बाल थे ऐसे दोबारा फिर ला दे। जैसे दिमाग के अंदर कोई लॉस हो जाए, अल्जाइमर, पार्किंसन, अब मैंने कलम पकड़ रखा है, जैसे बुढ़ापा आए किसी को पार्किंसन या अल्जाइमर हो जाए, दिमाग का मोटर न्यूरॉन्स आदेश नहीं दे पा रहा है, इसे आराम से पकड़ो जोर से, तो बार बार कंपन हो रहे हैं, शिवरिंग, चलते भी, बैठते भी, उठते भी, ऐसे असाध्य रोग ये दूर कर सकती है, क्योंकि हमारे पास वो तकनीक है जिस पे और रिसर्च जारी है, जो और प्रिसाइज और क्वालिटी होती जाएगी। In drug development, in agriculture, and perhaps eventually for treating human patients with genetic disease. अब ध्यान से देखो दूसरे वाले को। अब ये पढ़ना है फिलहाल, Here is a cell, the basic unit of all living tissue. बिल्कुल ध्यान से। Called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA and 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of protein, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm.
Protein factories in the cytoplasm गौरव हो गौरव गौरव bind to the ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acids. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. बस अब तुम समझ गए बात को, कितना समझे होगे वो पता लगने वाला। अब हमने क्या पढ़ा था, इससे पहली क्लास में हम पढ़ के आ चुके कि टॉपिक का नाम क्या है, पढ़ाने का मकसद क्या है, तुम्हें रियल नॉलेज हो, तुमसे कुछ ही पूछे तो कोई तुम्हें हर बात पता हो, बिल्कुल व्यवस्थित पता हो, टू द पॉइंट। कल को वो बात कहीं भी आ जाए 2 नंबर में, 5 नंबर में, 7 में, जो यूके का अपर पीएस मेन से इसमें कहीं आ जाए या यूपीएससी में कहीं आ जाए प्री मेंस में। तो हम इसमें अब तक ये पढ़ चुके हैं क्या, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दियर बेसिस, कि इसके बेसिस क्या हैं, क्या आधार है इसका, इतनी बात पढ़े, इससे फालतू तो कुछ नहीं पढ़े अभी, और तो आगे नहीं पहुंचे फिलहाल हम अभी। जैव प्रौद्योगिकी का आधार, ठीक, क्लियर। तो जो आधार या बेस है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें इसकी हमने इससे पहले 1 या 2 क्लास में भी एक क्लास पढ़ी, शायद क्लास रिकॉर्डेड है बाकायदा तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ लोग वहां भी नहीं देख रहे। इससे पहले क्लास में थे, इसकी शायद थे। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये बात पढ़ी कि एक होता है डीएनए, ठीक, एक होता है क्रोमोसोम, और एक होता है क्या, जीन, कि 3 चीज तो ये होती हैं बेस में। पहले फर्स्ट डीएनए कैसा है, एक इस प्रकार का मॉडल, डबल हेलिक्स, कुंडली नुमा, और तो कितनी कुंडली, 2, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने खोज की थी, वाटसन एंड क्रिक, ठीक, जिस पे क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए कौन, प्रोटीन्स। ये बेस बना होता है किसका, शुगर फास्फेट का, ठीक, इसके ऊपर जुड़ जाते हैं आके 4 प्रोटीन जो डूबे होते हैं नाइट्रोजन बेस में अर्थात क्षार में। कौन है 4 प्रोटीन, ए जी टी सी। ए बनाता है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन का, किससे, टी से, और जी बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, किससे, सी से। तो ए बॉन्ड बनाएगा तो टी से ही बनाएगा। तुमने अभी बात देखी कि जा रहे हैं जुड़ते हुए, 2 बजे क्लास वो हेड कांस्टेबल वाले साइंस की, और 1 बजे अभी उनके उसमें ग्रुप में डाल दे, और मैडम को बुला ले 3 बजे, 3 साढ़े 3, ठीक है, नहीं
ठीक है, क्लियर। तो ए जुड़ता है टी से और जी जुड़ता है सी से। 4 प्रोटीन से मिलकर ही डीएनए बनता है, एडेनिन, गुवानिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक है बातचीत, ये उसका मॉडल है। डीएनए है क्या? डीएनए है चैन ऑफ, अबे तुमने उसका फोटो देखा कि डीएनए किस प्रकार से अंदर फिट हो जाता छोटी सी सेल के, तो इसने अपने आप को कंडेंस कर लिया बिल्कुल छोटा, जिसे कहते हैं क्रोमेटिड या क्रोमेटिन। और वो कहां से हो गया? नीचे, जो छोटे छोटे पार्ट्स में है, जिन पार्ट्स का नाम है क्रोमोसोम। ये किसी भी सेल में अगर ह्यूमन की है मेल की तो कितने पेयर होते हैं? 23। और फीमेल की है तो कितने हैं? 22 पेयर हैं इसके जोड़े, और मेल फीमेल में। तो इनकी लंबी श्रृंखला का नाम क्या है? डीएनए। तो डीएनए बहुत लंबी चैन है। तुमने थोड़ी देर पहले ये बातचीत देखी, कहां देखी? इसमें देखी है बात। Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. ये क्रोमोसोम्स हैं जो कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर। एक लिक्विड भरा पड़ा है, एक द्रव है न्यूक्लियस के अंदर जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर ये है। अब जब जरूरत पड़ेगी प्रोटीन बनने की और इनकी कहीं नीड पड़ती होगी, तब यहां से अपना दूसरा रूप लेंगे, आपस में तुरंत जुड़ते हुए जाएंगे और एक चैन बना लेंगे डीएनए की। ठीक, तो ये सबसे बेसिक यूनिट है। Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. हिस्टोन वो चीज है जो डीएनए को आपस में जोड़े रखता है। न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला एक प्रोटीन जो डीएनए को आपस में जोड़ता है और इस चैन को टूटने नहीं देता। हर चैन पे क्या लगा पड़ा? हिस्टोन। तो डीएनए को बाइंडिंग या जोड़ कर रखने वाला प्रोटीन कौन है? हिस्टोन। क्रोमोसोम क्या चीज है? हिस्टोन क्या चीज है? और इसकी लंबी श्रृंखला का नाम है डीएनए। अब डीएनए काम कैसे करता है वो देखो एक सेकंड। Within the DNA are sections called genes. These genes डीएनए के पार्ट कहलाते हैं जीन। जीन ही कुछ काम करते हैं। जब ये डीएनए कुछ काम कर रहा है, अभी हमारी बॉडी को रात दिन चाहिए प्रोटीन, एनर्जी और अन्य सामान, वो प्रोटीन ही हमारे टूट फूट मरम्मत करेगा। मुझे पता नहीं, बॉडी के अंदर लीवर में अभी बहुत सी सेल मर गई है, अब उनकी रिपेयरिंग करनी है। रिपेयरिंग करने के लिए अंदर ही प्रोटीन बनना जरूरी है। अलग अलग प्रकार के प्रोटीन, हमारी बॉडी में ऐसे लगभग 21 प्रकार के प्रोटीन की बहुत जरूरत है। कितने? 21 एमिनो एसिड। चाहते हो कोई नोट कर लेना। हमारी बॉडी में 21 प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत है, इसेंशियल एमिनो एसिड्स। 21 प्रकार के एमिनो एसिड की जरूरत है, जिनमें से 12 तो बॉडी खुद बना लेती है अपने आप। बॉडी के अंदर क्या चल रहा है? उनका निर्माण। हमारी बॉडी में 21 प्रकार के एमिनो एसिड्स की जरूरत है, अमीनो अम्लों की, जिनमें से 12 तो बॉडी बना लेती है और 9 शरीर नहीं बना सकता, उन्हें आपको बाहर से लेना पड़ेगा। 9 एमिनो एसिड्स ह्यूमन कांट सिंथेसाइज। तो हमें 21 एमिनो एसिड की जरूरत है। अगर तुम समझ गए हो कहानी की, क्योंकि जहां मुझे कहानी लेके जाके रोकनी है, अब तब उससे अगली बात बतानी है। जब तक तुम्हें पता लगना प्रोटीन की तुम्हें क्या जरूरत है, तब तक आरएनए समझने का मतलब ही नहीं बनता। एमिनो अम्ल की जरूरत है हमें। कितने की?
हमें 21 अमीनो अम्लों की जरूरत है, जिनमें से 12 तो शरीर स्वयं बना लेता है अपने आप। ये वो प्रक्रिया है जिनके आदेश आते जाएंगे और नए नए प्रकार के प्रोटीन बनते जाएंगे। पहले बनेगी उनकी चैन, जब चैन पूरी हो गई वो सारे इकट्ठे हो गए, एक प्रोटीन बन गया। तुमने क्या देखा था पीछे भी, गोल गोला सा एक, ठीक। और 9 कैसे हैं, जो हमारा शरीर अपने आप नहीं बनाता, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बालों में कौन सा प्रोटीन है? कुछ के बाल तो बहुत बढ़िया चमकदार, सिल्की, रेशमी, और कुछ के झाड़ू, देख चमक रहे बढ़िया इसके तो, ठीक है। ऐसी क्या चीज है बालों में जो उन्हें चमकदार सुंदर बनाती है, झड़ने से रोकती है, टूटने से रोकती है, दो मुंहा होने से रोकती है? 4 प्रोटीन के नाम दोबारा बता दो। प्रोटीन का नाम तो किसी का बताया नहीं हमने अभी। ज्योति, ध्यान से हर बात सुनती रहे बस। बालों के अंदर मिलने वाले प्रोटीन का नाम विशाल वत्स। कीरेटिन, कैरोटीन नहीं, कीरेटिन कहाँ मिलता है? बालों में। हमारे ब्लड के अंदर कुछ प्रोटीन मिलते हैं, उसी का नाम बताइए। अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक क्या? नहीं तो लोग बनाएंगे तगड़े वाला पागल तुम्हारा, बता रखा मैंने। ढूंढते फिर रहे थे पागलों को वे, सड़कों पे लगा लगा के पोस्टर, ठीक क्या? कि जैसे पागल होंगे वो आ जाएंगे फटाफट अपने आप ही। तो 9 प्रोटीन चाहिए जो बाहर से लेने पड़ेंगे, और 12 हमारी बॉडी अंदर ही बना लेगी अपने आप। इन 12 में 6 तो इसेंशियल हैं, बहुत आवश्यक है, और 6 नॉन इसेंशियल, यानी कमी पड़ जाएगी तो घबराने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इसेंशियल और 6 नॉन एसेंशियल, 6 आवश्यक और 6 गैर आवश्यक। जो आवश्यक है लिखो नाम जरा, ज्योति नाम पूछ रही। आर्जिनिन, आर्जिनिन, सरसों का तेल जो खाता होगा उसे क्या मिल जाता है? आर्जिनिन। अभी सरसों का तेल मैं यहां रख लूं, तुम्हारी आंखों में चिरमिराहट से मारने शुरू हो गई है, वो एकदम फ्लेमेबल उड़ रहा है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जाके चर्बी बनने नहीं देगा, उसे पिघलाएगा। उसके अंदर वो गुण मिलता है जो हर तेल में नहीं मिलता है, और वो कौन पैदा करता है? उसके अंदर मिलने वाला आर्जिनिन नाम का प्रोटीन। ज्यादा तेल ना पी लियो दूसरा। सिस्टीन, CYSTEINE, सिस्टीन। ग्लाइसिन तीसरा, ग्लाइसिन। चौथा ग्लूटेमिन, जितने भी अनाज इसके अंदर क्या मिलता है? ग्लूटेमिन, ग्लूटेमिन। प्रोलीन, टायरोसिन, टायरोसिन। 6 तो कैसे हैं? इसेंशियल। तो जो बहुत आवश्यक है बॉडी इन्हें कम मात्रा में अपने पास रखती है हमेशा, ये कभी खत्म नहीं होने देती। वो आवश्यक है, बॉडी की क्रिया एकदम रुक जाएगी, एकदम समस्या में आएगी। जो कम आवश्यक है, नॉन इसेंशियल, वो भी 6 हैं। ये बॉडी में सदैव पर्याप्त मात्रा में होते हैं, कोई कमी नहीं पड़ती है, इतने भयंकर आवश्यक नहीं है। कौन है ये? एलेनिन, एस्पेरेटिक, एस्पेरेजिन, एलेनिन, एस्पेरेटिक, एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन, एलेनिन, एस्पेरेटिन, एस्पेरेजिन, ग्लूटामिन, सिराइन, सेलेनो, सिस्टीन, सिस्टीन, CYSTEINE।
तुम नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुमसे इनके नाम मुश्किल कोई पूछेगा। ठीक, तो अब तुम्हें इतने प्रोटीन चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है। अगर तुम्हारे पास प्रोटीन नहीं है तो तुम्हारा डीएनए फॉर्म नहीं हो सकता। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये 4 प्रोटीन तुम्हारा डीएनए बनाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे पे प्रोटीन है ही नहीं तो डीएनए बनने का ही नहीं, या वो अति कमजोर होगा। अगर डीएनए कमजोर होगा तो उसका जीन भी कमजोर होगा और उसके काम भी कमजोर होंगे। ठीक है, तो मजबूत डीएनए, मजबूत शरीर, मजबूत फंक्शनिंग, बीमारियों से रक्षा या अन्य। तो हमें जरूरत है प्रोटीन्स की। एक प्रोटीन का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या करता है हीमोग्लोबिन? कुछ लड़कियां होती हैं कंकाल, लड़के भी। जी, तू कंकाल नहीं, लेकिन बता दे इसके बारे में जरा, क्या चीज है हीमोग्लोबिन? क्या चीज है मनप्रीत? हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाले 2 प्रोटीन का मिक्सर है, जिसमें से एक प्रोटीन का नाम है हीमेटिन और एक का नाम है ग्लोबुलिन। इन 2 प्रोटीन से मिलके बनता है क्या? ये भी एक प्रोटीन है और ये भी एक प्रोटीन है। क्या बना? हीमोग्लोबिन, जिसका काम है, जिसका रंग तो लाल है ड्यू टू हीमेटिन, और जिसका काम है बॉडी में ऑक्सीजन लेकर जाना। अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो तुम यहां से भागना शुरू करोगे तुरंत अभी, और तुम 100 मीटर भागे। अब भागते ही तुम्हारी मांसपेशी अकड़ रही है। क्यों अकड़ रही है? जैसे अपने बारे में कुछ नहीं पता होता, वो बावले होते हैं ऐसे बहुत से। हमारी मांसपेशियों में क्रिया होते ही एकदम से निकल रहा है पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल, जो कर रहा है इन्हें कठोर। हम जिम में गए, जाते ही बॉडी बनाना शुरू आज। ठीक क्या? ऐसा करते यहां से एकदम बॉडी बनना शुरू। हमें लगा बनने शुरू हो रही भाई अब तो, बिल्कुल थोड़ी सी और कर जरा सी। यानी ऐसा होते ही जो मसल्स हैं वो हो रही हैं कठोर, और हम हो रहे हैं बहुत खुश कि बन गई बिल्कुल अब तो। ठीक क्या? ऐसे करके दिखाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो क्या मसला है? बॉडी में जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी होगी निकलेगा पायरुविक अम्ल, और जैसे ही उसे ऑक्सीजन नहीं मिलने की, तो ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी की हर सेल में बढ़ चुकी है। अगर उसमें एक बार भी ऑक्सीजन मिली तो वो रिलैक्स हो गया, और वो कौन पहुंचा रहा है? ब्लड। अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम है तो भागते ही चक्कर चक्कर आ रहे हैं, सांस फूल गया है, मरने वाला अब जब बस ये, उसे रुकना पड़ जाएगा, नहीं चक्कर खा जा पड़ेगा तुरंत ही। ऐसा होने वाला है। क्यों? हीमोग्लोबिन की मात्रा डिफाइन करे क्या? एकमात्र चीज है जो ऑक्सीजन लेके जाएगी, और यही ना मिली, और ये कब नहीं मिलने की? जब उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी। और प्रोटीन कहां बनेगा? ये जीन अलग अलग आदेश देंगी और प्रोटीन बनाएंगी। कैसे? अब देखो, बस वो दमादम मार रही है आपकी सेल्स को, और कब्जा कर रही है आपके फेफड़ों पे, और फेफड़ों में जहां जंक्शन होता है वो हो गया चोक। अब खून भी हो कोई बात नहीं है, आपका ऑक्सीजन मिक्स ही नहीं हो रहा किससे? ब्लड से, तो आपके फेफड़े चोक हो गए हैं। तो अब आपको देना पड़ रहा है अलग अलग प्रकार का सामान, कि चलो यहाँ ये काम नहीं हो रहा, डायरेक्ट देंगे सीधा ऑक्सीजन। नहीं मिला तो मर गया। ठीक क्या? कितना खतरनाक मामला, तुम्हें पता ही नहीं इस बात का। Contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. ये जीन बनाते हैं प्रोटीन। An enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA to 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are at. जुड़ते जा रहे हैं
और आदेश जा रहे हैं पहले कि क्या बनेगा। अब जहां बनेगा वो पढ़ना है आज, कि कैसे बनता है प्रोटीन और कहां बनता है प्रोटीन। चलते हैं उसी टॉपिक के ऊपर जहां हम थे। डीएनए क्या है क्लियर, क्रोमोसोम क्या है, इसकी एक लंबी श्रृंखला, और जीन क्या है, डीएनए के अलग अलग खंड पार्ट जो काम करते हैं किसका, डीएनए क्या काम करेगा इन जीन से डिसाइड होगा। जीन है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए काम करने की इकाई, डीएनए तो पूरी बॉडी में है, बालों में अलग तरह से काम करता है, आंखों में अलग, लीवर में अलग, किडनी में अलग, पेनक्रियाज में अलग। तो वो काम कैसे कर रहा है वो बता रहा है कौन, उसे जीन। तो जितने भी आदेश आएंगे जाएंगे और काम होंगे वो कौन करेंगे, जीन। तो हमारी बॉडी में लगभग 23 से लेके 26,000 प्रकार के जीन हैं। ठीक, तो इतने प्रकार के काम हमारी बॉडी करती है, असंख्य काम हैं दुनिया भर के। ठीक, जिनमें से बहुतों का पता नहीं है। अमेरिका ने स्टार्ट कर रखा था प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में, जो 2003 में पूरा हो गया, 2003 में, जिनसे पता लगा हमने बहुत सारे जीन डिकोड कर दिए, डिकोड किए कहाँ बनते हैं, कैसे होते हैं, कैसा काम करते हैं इत्यादि, ताकि हम कर सके जीन की थेरेपी, ट्रीटमेंट, एडिटिंग, काटना, जोड़ना इत्यादि। ठीक, तो आज टॉपिक है, ये तो हमने पढ़ दिया, इससे आगे इसी का एक बेस का एक मामला है क्या, आरएनए। आरएनए क्या है और ये कहां कहां मिलता है। ठीक, तो तुमने कहा ये एक सेल है, सेल के अंदर कौन है, एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन है, छोटे छोटे क्रोमोसोम्स। और अब ये क्रोमोसोम जुड़ जुड़ के बाहर जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो अब आरएनए, जिस प्रकार से डीएनए, इनकी लंबी एक श्रृंखला है, ठीक, जो इस प्रकार की है, ठीक, डबल हेलिक्स। तो आरएनए एक सिंगल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड या सिंगल हेलिक्स, एकल कुंडलित, एक कुंडली है बस, दूसरी नहीं है, ऐसी स्ट्रक्चर कौन है, आरएनए। आरएनए कहां मिलेगा, आरएनए का बहुत छोटा सा पार्ट आदेश लेके आने वाला तो डीएनए के अंदर भी होता है। नहीं तो आरएनए मुख्य रूप से कहां होता है, जो बाहर लिक्विड भरा पड़ा है, आरएनए यहां होता है, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। नोट कर दो जरा, लिखो जरा वर्ड। आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। इट स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। यह कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ होता है। यह एकल कुंडलित होता है। इट इज सिंगल लेयर्ड और सिंगल हेलिक्स, एकल कुंडलित होता है। यह विशेष प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। इट्स मेन फंक्शन टू फॉर्म स्पेशल प्रोटीन्स। यह प्रोटीन निर्माण करता है। यह गैर आनुवांशिक पदार्थ है। इट इज नॉन जेनेटिक मटेरियल। यह गैर आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, इतनी बात में कहीं देखो तो तुरंत पूछो एकदम से फटाफट। आरएनए आर ऑफ 3 टाइप्स। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है।
अब तुमने पिछली वीडियो के अंदर ये बात देखी कि जीन आदेश दे रहे हैं किसका? When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of 3 bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the 3 bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. बस क्या सुनने जा रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? और अभी एक स्पेशल आरएनए कहाँ? डीएनए के अंदर था, पॉलीमरेज, जो किससे मिला? इस जीन से। और जीन ने उसके अंदर अपने आप को ऐसे मिक्स करना शुरू कर दिया और एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक आदेश आया जिससे एक प्रोटीन बनना है। तो जहां हम हैं, ये एक सेल है। इस सेल के अंदर से आरएनए कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक तो कौन है? एक है mRNA। तो mRNA कहां होता है मौजूद? डीएनए के अंदर। कहां? ये डीएनए के अंदर मौजूद है, जो डीएनए से आदेश लेके आ रहा है। डीएनए से आदेश लेके आ रहा है किसके पास? यहां पे है एक फैक्ट्री। mRNA जो आदेश लेके आ रहा है वो कोड लैंग्वेज में है, जिसमें आपस में कौन जुड़े हुए हैं? ATGC ऐसे कर करके। ठीक, तो mRNA का मतलब है मैसेंजर आरएनए, जो लेके आया है मैसेज। कहां से? केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर से। ठीक, क्लियर? अब एक कौन है? RRNA, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, RRNA, इसके पास लेके आया है आदेश। इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी का वर्ड है अनुलेखन। क्या नाम है? अनुलेखन। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? एक कोशिका है, उसके अंदर डीएनए है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जिसका नाम है क्रोमोसोम्स। उन्हीं के अंदर एक सामान है आरएनए का, उसका नाम है mRNA, जिसका काम है डीएनए के जीन के द्वारा उसे पता है क्या प्रोटीन बनना है। अब जो प्रोटीन बनना है उसका मैसेज लेकर आया है mRNA केंद्र के अंदर से। कहा? यहां आया वैसे तो ये, लेकिन हम तो क्या दिखा रहे हैं बस कि आरएनए इसके अंदर है और ये उसकी बड़ी फिगर है एक। तो अंदर से ही कहां लेके आया मैसेज? यहीं पे ही आरएनए के पास, कोशिका के बाहर, केंद्रक के बाहर, कोशिका के अंदर। ठीक, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, कोड लैंग्वेज। ठीक, वो कहां आएगा? RRNA पे। तो कोड लैंग्वेज कैसे आ रहा था वो? कि यहां कुछ कोड मिले हुए थे ATGC ऐसे कर करके। उन कोडों को लेकर कौन आया यहां पे? अब ये कोड होंगे क्या? ट्रांसलेट, कि क्या बनना है। ठीक, और कहां होगा ट्रांसलेशन? ये RRNA में, फैक्ट्री में। तो जो ऊपर से कोड आए हैं इसके पास, इसके ऊपर ऐसे क्या है? ये
डीएनए एक सिंगल स्ट्रक्चर है, आरएनए और डीएनए में बस एक प्रोटीन का अंतर है, खाली एक का। वहां तो 4 प्रोटीन हैं, ए, जी, टी, सी। यहां 3 चीज कॉमन है, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, 3 चीज कॉमन है बस। वहां एक्स्ट्रा एक अलग चीज है, कौन? टी। वहां तो होता है थायमिन और यहां होता है यूरेसिल। यानी एक्स्ट्रा एक चीज है, बस एक प्रोटीन का अंतर है। डीएनए में 4 प्रोटीन है और आरएनए में भी 4 प्रोटीन है, 3 कॉमन है, वहां थायमिन अलग होता है और यहां कौन होता है? यूरेसिल। तो अब इस पे क्या लिखा हुआ है? UGC, AUGC, ऐसे करके चल रहा है कार्यक्रम, ठीक है। इस पे इस रूप में प्रोटीन है, AUCG, UAC, ऐसे कर करके इस पे इस प्रकार से लिखा हुआ सामान है डीएनए के ऊपर। डीएनए जेनेटिक है और ये जेनेटिक नहीं है, उसका पार्ट नहीं है डीएनए का, ये डीएनए का पार्ट नहीं है। ये तो डीएनए के मामले से बिल्कुल बाहर है। यहां डीएनए केंद्रक के अंदर है और ये केंद्रक के बाहर है। वो तो अंदर से आया मैसेज लेके। किसका मैसेज आया अंदर से? केंद्रक के अंदर डीएनए का मैसेज लेके आया है बाहर। किसके पास आया वो? आरएनए के पास। कहाँ का मैसेज है? कि कुछ प्रोटीन बननी है, उन्हें बनाओ। कुछ प्रोटीन बननी है, उन्हें बनाओ। जहां प्रोटीन बनेगी उसका नाम क्या है? आरएनए। इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री, आरएनए। अब प्रोटीन बनना किससे? जो तुम खाओगे, जो तुम खाओगे उससे तो बनना प्रोटीन। तुमने खाया अभी दाल, पनीर, दूध, अलग अलग सामान, उस हर एक में प्रोटीन है। तो तुम्हारी बॉडी ने वो पचा दिया। पचाने के बाद अब वो ब्लड में घूम रहा है, पचने के बाद, ठीक है। किस रूप में? अमीनो अम्लों के रूप में, एमिनो एसिड के रूप में। तो एक का नाम है टीआरएनए, टीआरएनए। अब ये पकड़ पकड़ के लाया किसे? अमीनो अम्लों को, जिनकी यहां छपाई होगी और जिनसे बनेंगे नए नए प्रोटीन, ठीक। तो टीआरएनए पहले क्या लेके आया फैक्ट्री में? अमीनो अम्लों को। इसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या? ट्रांसफर आरएनए। एक आया है कौन इसके पास? मैसेज, मैसेंजर लेके, कि इसके पास क्या आ गया? मैसेज, ठीक। और जिस फैक्ट्री में भी ये माल बनना है वो है कौन? आरएनए, ठीक। और माल बनने के बाद जहां उसकी जरूरत होगी अब ये वहां जाएगा बस, ठीक। तो यहां 3 चीजें हैं, एक आरएनए, एक मैसेंजर, और एक डबल काम करता है, लाने का भी और लेके जाने का भी। वो कौन था? वो है टीआरएनए, ठीक है। तो पहले क्या लेके आ रखा है ये? एमिनो एसिड्स को, जिनकी यहां छपाई होगी, जिनकी यहां छपाई होगी। इस फैक्ट्री के अंदर प्रोटीन बनेगा। तो आरएनए का मेन काम है प्रोटीन फॉर्मेशन। आरएनए का मेन काम है प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाना, जिसकी आपकी बॉडी को नीड है अलग अलग पार्ट में, ठीक। और कितने प्रोटीन चाहिए तुम्हें? अभी तुमने सुन लिया, तुम्हें 21 टाइप के प्रोटीन चाहिए बॉडी के लिए, जिसमें से 12 बॉडी खुद कर लेगी मैनेज और 9 तुम्हें बाहर से खाने में ही लेने पड़ेंगे। अब कभी कभी तुम खाने में करते हो बहुत सारी अनियमितताएं, ऐसे प्रोटीन लेते नहीं हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तुम्हारे ऊपर पड़ना शुरू हो चुका है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। बॉडी के अंदर भी और बॉडी के बाहर भी। क्योंकि हमें किसी प्रकार के न्यूट्रिशन नॉलेज नहीं है, ना हमें किसी ने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो एक कोड लैंग्वेज में
एक आरएनए का पार्ट कहाँ है? डीएनए के अंदर ही, जिसका नाम है एमआरएनए। ये वहां से कोड के रूप में आया है कुछ सामान लेके, कोड, जिस कोड के आधार पर यहां छपाई होगी प्रोटीन की। और वो छपाई कैसे होगी, अब सुनते जाना। तीन तीन चीज मिलेंगी, तीन बस, जिसे कहते हैं ट्रिपलेट। क्या वर्ड बोला? ट्रिपलेट कोडोन। ट्रिपलेट कोडोन, तीन कौन चीज अभी मिल गई? यूजीसी। तो अब यूजीसी मिली, एक यूनिट बनी, दूसरी फिर आगे सामान आ रखा, दूसरी बनी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ऐसे करके क्या छपते जा रहे हैं? कोड आया था, जहां वो ट्रांसलेट होता है वो कौन है? आरएनए। इस प्रक्रिया का नाम है, जहां छपाई हो रही है, इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसलेशन। अनुवाद करना, ट्रांसलेट करना। और ये क्या है? कोड लैंग्वेज, जहां आके ट्रांसलेट हो रही है कि क्या आदेश आया था डीएनए से, क्या बनना है अब जा, क्या बनना है अब जा। अभी तुम्हें समझाना कोरोना तुरंत, 10 मिनट का टाइम है बस खाली। तो अब जब ये चैन पूरी हो जाएगी, व्हाट इज प्रोटीन? जो 12th तक बेकार पढ़ के आते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और जो 12th तक बहुत बढ़िया पढ़ के आते हैं उन्हें बहुत कम मेहनत पड़नी पड़ती है। ये सब मामला पढ़ के रखे लोगों ने। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज ए चैन ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो अम्लों की एक श्रृंखला है। तो अमीनो अम्ल यहां आए, एक श्रृंखला के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो गए, और जब ये चैन पूरी हो गई, तुमने वीडियो के अंदर देखा, वो चैन अलग होकर अब इकट्ठी हो गई है, और क्या बन गया है उसका? प्रोटीन। एक प्रकार का प्रोटीन बन गया। जरूरत थी बालों में भेज दिया, ठीक है। जरूरत थी लीवर में भेज दिया। तो जहां जरूरत होगी, फिर इसे बनने के बाद यहां से कौन? टीआरएनए ही लाया भी था और भिजवाएगा भी, तभी तो नाम क्या है? ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए को ही बोलते हैं आरएनए की फैक्ट्री, जहां पे जो कोड आए थे वो छपेंगे, और तीन तीन की फॉर्म में छपेंगे, ऐसे AGC, ठीक है, CGU, AUC। अलग अलग प्रकार के मिलते ही अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बननी है, अलग अलग कोड। तो वैसे 23 प्रकार के जोड़े यहां बनेंगे, अलग अलग टाइप के, कभी ACG, कभी AGC, कभी GGG, कभी CCC, UUU, इस प्रकार से अलग अलग प्रोटीन बनते जाएंगे। एक भी छपाई में गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी भयंकर वाली। छपाई में गलती का मतलब है प्रोटीन में गलती, उसमें गलती तो बॉडी में हो सकता है उसे नुकसान हो जाए, ठीक है। तो आरएनए का एक पार्ट कहां रहता है? डीएनए के अंदर, जिसका नाम है एमआरएनए, जो लेके आता है कहां से? जो लेके आता है मैसेज डीएनए से क्या बनना है, ठीक। जो बनता है आरएनए पे, जहां टीआरएनए लेके आता है तुम्हारे खाए गए सामानों में से। दाल खाई थी तो उसमें प्रोटीन था, तो उससे अमीनो अम्ल मिले। अब अमीनो एसिड्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। चावल खाओगे तो अमीनो अम्ल अलग मिलेगा, दाल खाओगे तो अलग मिलेगा, दूध लोगे तो अलग मिलेगा। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ से तुम्हारे जो अमीनो अम्ल है उनकी पूर्ति होगी। तुमने सारे खा लिए तो प्रोटीन पूरी हो गई, वो पच गई, वो यहां गई और छपाई होकर उसके अलग अलग रूप बनते चले गए। अगली बार छपाई हुई तो और चैन बनी ऐसे ही, अगली बार। अब यहां रात दिन ये प्रक्रिया इतनी फास्ट है जैसे बिजली की रफ्तार चल रहा मामला। जरा हमारा था नहीं, भयंकर वाली छपाई दिख भी नहीं सकती, इतनी भयंकर स्पीड किसकी है? इनके बनने की। ये दोनों वीडियो तुम्हारे पास भेज दूंगा, अपने घर बैठ के आराम से देखना। ट्रिपलेट कोडोन किसे कहते हैं? AGC, CGU, CCU, GCC, ऐसे करके तीन तीन के युग्म बनते जाएंगे, जिनसे अलग अलग प्रोटीन के अमीनो अम्ल बनते जाएंगे। जब उनकी श्रृंखला पूरी हो जाएगी तो वे इससे अलग हो जाएंगे, एक प्रोटीन का रूप लेंगे और ब्लड के साथ मिलके बॉडी के अलग पार्टों में भेज दिए जाएंगे यूज होने के लिए। तो आरएनए क्या है? अब बताओ कोरोना का वैक्सीन कैसे बन रहा है?
कुछ भी नहीं दिख रहा है और वॉइस भी नहीं आ रही है। डिम्पल कपाड़िया, ओके का मामला? ठीक है, अब तो क्लास चल गई, अपने आप चल गया आज ये मामला इसका। जी, इतनी बातों में दिक्कत हो तुरंत पूछ लो एकदम से। 2 वीडियो दिखाई, बात समझाई, बिल्कुल आराम से, जल्दी कुछ नहीं है। जल्दी होती तो बोल खेलता एकदम से आरण नहीं होता, चलो आगे बस, ताकि तुम समझ जाओ। लेकिन मेहनती आदमी क्लास में बहुत कम है। mRNA, RNA और tRNA, इनके बारे में लिखो जरा आप जाओ। पहले होमवर्क लिखो, तुम्हें ढूंढ के आना mRNA क्या होता है, siRNA क्या होता है, mRNA क्या होता है, siRNA क्या होता है, ओ वो लगेगा ये तो फायदा है, बता दे तुरंत एकदम ये। अब आवाज आ रही ठीक ठाक फरीदा जहाँ? ज्योति, पारुल, अब ठीक आ रही क्या आवाज? बिल्कुल, सेल खत्म हो गई थी बीच में। तो mRNA क्या है आगे, rRNA जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। mRNA प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, सिंथेसिस। rRNA इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। इट इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए विच कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री, जहां प्रोटीन निर्माण होता है।
इसे राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन का 80% होता है। इट इज 80% ऑफ सेल आरएनए, यानी आरएनए का सबसे बड़ा रूप कौन है? आरएनए। कितना? 80% यही है तो दमादम बनाता है प्रोटीन। इसके माध्यम से राइबोसोम की रचनाएं प्रोटीन बनाती है। इट मेक्स प्रोटीन बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। टीआरएनए, यह प्रोटीन निर्माण के लिए शरीर के अमीनो अम्लों को आरएनए तक लेकर आता है। इट इज ए ट्रांसफर आरएनए it provide amino acids to rRNA where the protein formation happen, जहां पर प्रोटीन निर्माण होता है। यह आरएनए का सबसे छोटा भाग होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आरएनए, टीआरएनए। जब कभी मेंस दोगे पीसीएस का, आईएएस का, तो उत्तराखंड पीसीएस में 16 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आरएनए क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, और प्रोटीन निर्माण प्रक्रिया समझाइए। ठीक, चलो अब तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें ये खोज के लाना कि कोरोना वैक्सीन किस प्रकार से बॉडी में काम कर रही है। ये सारा खेल समझ गए अब जाओ। कोरोना वैक्सीन बॉडी में कैसे काम कर रही है, और MI, SI एंड RNAi क्या होता है। कल मिलते हैं इससे आगे, दोनों बात पढ़ जाएंगे, ये भी और ये भी। इकोनॉमी एंड साइंस टेक। जरा मुकुल को भेज दे एक बार।